हूँ कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार इकट्ठा किया। हालेलुया। प्रभु में सदैव आनंद मनाओ। Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. So, as we all know, from last week we have started the topic, the word of God. गए हफ्ते से हमने ये वचन का जो टॉपिक है, जिसका नाम है परमेश्वर के वचन, इसका हमने शुरुआत की है और हम उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे चर्च। मैं विश्वास करता हूँ चर्च कि आप सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो। डोंट हियर व्हाट आई एम सेइंग। ओह, हु एम आई? कौन हूं मैं जो तुम मेरी बातों को सुनो चर्च? ओह, आई एम नथिंग। Not I am the prime minister, not I am an ambassador, not anything, but just listen what the word wants to say to you through me. Hallelujah. That is my privilege, church, and I am standing in front of you to share the word of God. इससे बढ़कर और कोई अच्छी बात नहीं है चर्च कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में बांटने चाह रहा हूँ। Thank you, Jesus. So we will go in the book of Ezekiel. परमेश्वर का वचन हम पुराने नियम की एजेकियल की किताब 37 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ते हैं चर्च। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनको चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूलडोल हुआ और मैं हड्डी आई करती होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके यह कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात हुओं में से समाचार कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमेन। हालेलुया। So church, we know ये वचन एजेकियल 37 अध्याय पहले वचन से हमें सबको पता है चर्च। हालेलुया। I want to read you for you in English also. And the hand of Jehovah proved to be upon me, so that he brought me forth in the spirit of Jehovah and set me down in the midst of valley plain, and it was full of bones. And he had me pass along by them all round about, and look, there were very many on the surface of the valley plain, and look, they were very dry. And he began to say to me, Son of man, can these bones come to life? To that I said, So will Lord Jehovah, you yourself well know. And he went on to say to me, Prophesy over these bones, and you must say to them, O you dry bones, hear the word of Jehovah Lord. This is what the sovereign Lord has said to these bones. Here I am bringing unto you breath, and you must come to life. And I will put upon you sinews and cause to come upon you flesh, and I will overlay upon you skin and put in you breath, and you must come to life, and you will have to know that I am Lord Jehovah. And I prophesied just as I had been commanded, and a sound began to occur as soon as I prophesied, and here there was a rattling, and bones began to approach bone to its bone. And I saw, and I looked upon them, sinews themselves, and flesh itself came up, and skin began to be overlaid upon them above. But as regards breath, there was none of it in them. He went on saying, to be prophesied to the wind, prophesy, O son of man, and you must say to the wind, this is what the sovereign Lord Jehovah has said.
from the four winds coming, O wind, and blow upon these skilled people, that they may come to life. And I prophesied just as he had commanded me, and the breath proceeded to come into them, and they began to live and stand upon their feet, a very, very great military force. Amen. Hallelujah. चर्च, जैसे हम परमेश्वर के वचन के बारे में जानने की शुरुआत गए हफ्ते से शुरू किए चर्च, और परमेश्वर का वचन क्या है, और हमने गए हफ्ते में देखे कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। परमेश्वर का वचन जब हम हमारे जीवन के अंदर लागू करते हैं, परमेश्वर का वचन एक्टिवेट होता है, कार्यरत होता है। हालेलुया। बट इसके पहले हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। हमें परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कर सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उस परमेश्वर के वचन के अंदर रखे हुए वो सामर्थ को, वो अभिषेक को, वो चंगाई को, वो छुटकारे को, वो उद्धार को नहीं पा सकते चर्च। हालेलुया। चर्च, आज जो हम इस वचन एजिकल 37 के वचन को हम जैसे आज मनन चिंतन करने जा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन हमें बाइबल का वो अध्याय है, और ये बाइबल के वो वचन है जो एजिकल 1 से 10 वचन, जिसमें परमेश्वर ने सबसे बड़ा चमत्कार किया है। The biggest miracle in the Bible. Hallelujah. The biggest miracle in the Bible which God did through Ezekiel. Hallelujah. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन परमेश्वर का वचन सामर्थी है। The word of God is powerful. Hallelujah. But when it activates, how can we understand that the word is powerful? Church, अगर हम देखेंगे ये वचन को एजिकल 37 अध्याय 37वें अध्याय को पहले वचन से, तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर एजिकल को कुछ आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एजिकल को कुछ आज्ञा दे रहा है, और परमेश्वर उस आज्ञा के द्वारा ऐसा कुछ करने जा रहा है जो एटलीस्ट मनुष्य की सोच के परे है। It is beyond the imagination of humans. Hallelujah. Because our God is a supernatural God. He can do anything, anywhere. Hallelujah. So I want to tell you, my brothers and sisters, just concentrate on the word of God today, because if you will concentrate at least 15 to 20 minutes today, your concentration will change your life, church. Your concentration will change the concept about the word of God. Hallelujah. So यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एजिकल को कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। एजिकल कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। प्रभु के एजिकल कहता है कि परमेश्वर की the strength, the English में लिखा है, the hand of the Lord was upon me and he carried me out in the spirit of the Lord. The spirit which was upon Ezekiel that carried him. परमेश्वर का आत्मा जो तुमने और मैंने पाया है चर्च, वो परमेश्वर का आत्मा वो सारी बातों को करेगा जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है चर्च। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं वो कई बारी वो सहायक आत्मा दिए जाऊंगा जो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, चलाएगा और बताएगा। The Spirit of Lord is on me and He has anointed me. यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। Church, the word itself, परमेश्वर का वचन आप कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। Church, you need the Spirit and you need the word. Without the Spirit, you can't believe on the word and you can't walk on the word. You can't utilize the word in your life because the Spirit Himself will guide you. The Spirit Himself will take you what the Spirit wants, what the Spirit of God wants. Hallelujah. So यहाँ लिखा है और मुझे वो अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई कैसी थी? हड्डियों से भरी हुई थी। The midst of the valley which was full of dry bones. Hallelujah. Full of dry bones. तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वो हड्डियां कैसी थी? बहुत ही सूखी हुई हड्डियां थी। Hallelujah. Church, Ezekiel was confused. Ezekiel confused था कि परमेश्वर ने मुझे इस घोर तराई में क्यों लेकर आया है? क्या चाहता है परमेश्वर? Hallelujah. See,
तब उसने मुझसे पूछा, किसने पूछा? परमेश्वर ने। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? Today the Lord is asking you and me, church. The Lord is asking you and me that do you believe on me? And if you believe on me, do you believe that I can do something impossible to possible? Hallelujah. परमेश्वर कहता है आज तुम्हें और मुझे, चर्च, कि क्या ये सूखी हुई हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। Many people will be there. बहुत सारे लोग आज रहेंगे जिनकी हर एक आशा टूट गई है। आज उनकी हर एक विश्वास कमजोर हो चुका है। वो बीमारी के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं। But the Lord is asking first of all to you and me. आज प्रभु हर एक उस व्यक्ति को कह रहा है, सवाल पूछ रहा है, चर्च, क्या तुम जिस बीमारी में तुम हो उस बीमारी से तुम निकल सकते हो क्या? क्या जिस दुख में, जिस संकट में, जिस दर्द में, जिस कमी कमी में हो तुम, क्या तुम उसमें से निकल सकते हो क्या? हालेलुया। चर्च, where there is no hope, the only hope is Jesus. जहां कोई आशा नहीं रहती, वहां एक ही आशा है और उस आशा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यह प्रभु परमेश्वर एज़ेकियेल को कहता है, क्या यीशु की हड्डियां जी सकती है क्या? मैंने कहा है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। I don't know what you can do, but I don't want to argue with you. परमेश्वर का वचन हाँ और आमेन है, चर्च, not more than that. Because Jesus told that I am the Alpha and I am the Omega. यीशु मसीह ने कहा, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के अंदर ही बनाया गया है, चर्च। हालेलुया। सोचिए आगे हम लिखा है 4 वचन में, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यीशु की हड्डियां यहोवा का वचन सुनो। Just concentrate what this 4th verse is saying. Again he said unto me, prophesy upon these bones and say unto them, O dry bones, hear the word of the Lord. Hallelujah. क्या लिखा है? कि परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन, चर्च, when we hear the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन को सुन के वचन के ऊपर विश्वास करके जब हम अपने आप के ऊपर और लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं, वो the miracle happens, church. वो अद्भुत काम हो जाता है। ओ लाबा खाली रे पा शखाला रे पे ओ दे लीला रे पा शखाला रे पे। चर्च, आई एम नॉट स्टैंडिंग हियर। मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूँ ताकि मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं, but I am just standing here by the Spirit of the Lord and whatever the Lord has told me to say you. जो कुछ प्रभु ने मुझे बताया है तुम्हें कहने के लिए, वो ही मैं बता रहा हूँ। ये एज़ेकियेल 37 बात है, हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रचार सुने होंगे, पर आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि केवल और केवल परमेश्वर का वचन है जो सब कुछ बदल सकता है, चर्च। He can change everything because the word, when you believe on the word and when you take that word and prophesy on yourself and you prophesy on the masses, on the Gentiles, on the believers, I want to tell you something impossible will become possible. Hallelujah. ओला खाली रे बशाला रे बे 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 बे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, एज़ेकियेल प्रोफेसाइजिंग, एज़ेकियेल भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांसें समाऊंगा और तुम जी उठोगी। Amen. Amen. The Lord told Ezekiel to prophesy. Church, there is a question which came in my mind and this question should come in your mind also. एक सवाल मेरे अंदर आया, ये सवाल तुम्हारे अंदर भी आना बहुत ही जरूरी है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने मृत्यु की डंक को तोड़ा, क्या वो परमेश्वर मनुष्य के पुत्र एज़ेकियेल को क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? क्या परमेश्वर आप ही उन सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, चर्च? नो, बिकॉज गॉड वांटेड दैट द सन ऑफ मैन शुड ग्लोरीफाई हिज नेम। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है कि परमेश्वर के बच्चे उसे रिप्रेजेंट करे, परमेश्वर के बच्चे उसकी महिमा को प्रकट करे, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है, वो अल शद्दाई है, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अनादिकाल का, अनंत काल का पिता है, चर्च।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहले अध्याय में कहा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अगर उत्पत्ति को देखेंगे, परमेश्वर ने एक मिट्टी से पुतले को बना, उस पुतले के अंदर अपनी सांस को फूका, वो सात जीवित प्राणी बन गया, वो मिट्टी का पुतला, और वो आदम कहलाया चर्च। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? ताकि वो जिसका नाम आदम था वो परमेश्वर को प्रकट करे। बाइबल हमें बताती है एक्सक्यूज मी, बाइबल हमें बताती है चर्च कि पर आदम परमेश्वर के समान था। आदम के अंदर वो सारी चीजें थी जो परमेश्वर के पास थी। बिकॉज गॉड क्रिएटेड एडम, गॉड क्रिएटेड ह्यूमन इन हिज ओन इमेज चर्च। और यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने एजिकल के ऊपर अपना आत्मा को समाया और एजिकल को कहा कि मेरा वचन यीशु की हड्डियों के ऊपर प्रोफेसाई कर, मेरा वचन यीशु की हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। हालेलुया। Oh, the God wants a vessel. He wants someone who can be utilized for his glorification. Hallelujah. And if we are believing on the word of God, we want to understand that God wants to utilize you and me in church. He wants to utilize, वो तुम्हें और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो वचन जो आदि में था वो जीवित हो जाए, वो लोगों को जिंदा कर सके यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आज सूखी हुई हड्डियां जो बहुत ही सूखी हुई है, आज उनकी आशा मर चुकी है। आज संसार के लोग जो आज आत्मा में मर चुके हैं, चर्च आज उन्हें परमेश्वर के वचन की जरूरत है ताकि परमेश्वर का वचन उन्हें जीवित कर सकेगा। और तुम और मैं वो वेसल है, वो बर्तन है। चर्च, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा को हर एक देश के, दुनिया के कोने तक पहुंचाना चाहता है। But are we ready for the word of Lord? Are we believing on the word of Lord? And are we ready to prophesy the word of God to the Gentiles, to the masses, so that they can live? Amen. Hallelujah. Church, I really want to request you, my brothers and sisters, believe on the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करो और परमेश्वर का वचन तुम्हें कभी लज्जित भजित होने नहीं देगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। Today we are meditating on the power of the word. जैसे हमने गए हफ्ते में जाना कि वचन क्या है। पहले गए हफ्ते में हमने देखा योना एक के आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। पर इस हफ्ते में वो वचन कैसे सामर्थ्य रूप से काम करता है, ये हम एजिकल के 37वें अध्याय के इन वचनों से देख रहे। चर्च, हालेलुया। हम देख रहे लॉर्ड गॉड ने आदम को कहा, परमेश्वर यहोवा ने आदम को कहा, जिस समय तू उस भले और बुरे ज्ञान का फल खाएगा उसी समय तू मर जाएगा। You will die on the spot. But अगर हम देखेंगे कि आदम 930 साल जिया। हालेलुया। But I want to tell you in the spiritual realm, आत्मिक तौर पे उसी समय को मर गया था चर्च। और उसी तरह आज संसार के लोग जिस समय उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध काम किया, उसी समय वो आत्मा में मर चुके हैं। चर्च, one day we were also dead in our spirit. एक समय था हम भी आत्मा में मर चुके थे, पर जिस समय हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन के ऊपर विश्वास किया और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, उस समय हम नई सृष्टि बन गए। चर्च, today we are the sons and daughters of the Lord of the Almighty. Hallelujah. 14 रोमी कहता है जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वही लोग परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। Hallelujah. And today our spirit is living. हमारा आत्मा जीवित है।